Hello, class 7th. We are discussing chapter 2 of civics, role of the government in health. Two parts we already have discussed. What is health? We have discussed healthcare in India. We have discussed the story of Hakim Sheikh and story of Ranjan and Aman. We already have discussed, and private and public health care services. Okay, difference between both of them we have discussed. Now today in our third part, let's start our discussion with the question given here in this pink box on page 24, that why pay taxes to the government. Okay, why we people give taxes to the government. Government uses tax money for providing many services for the benefit of all citizens. गवर्नमेंट अगर टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट वापस उसको पब्लिक वेलफेयर पे ही स्पेंड करती है, यानी कि खर्च करती है. सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज एक्सेट्रा. ठीक है, हाईवे बनाने में, जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड करवाने में, पुलिस सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में, या डिफेंस सर्विसेज की हमारी कंट्री को फॉरेन कंट्रीज़ के अटैक से बचाने के लिए, नेबरिंग कंट्रीज़ के अटैक से बचाने के लिए डिफेंस जो प्रोवाइड करती है, तो ये सब में उस टैक्स की मनी का ही यूज़ करती है. अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्व्स. भाई हम हमारे घर के लिए, हम हमारी नीड्स के लिए तो हम अपनी तरफ हम खुद सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. ठीक है, हमें फूड चाहिए, हमें अगर मेडिकल सर्विसेज चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, तो हाँ हम जा सकते हैं. बट व्हाट अबाउट डिफेंस, है ना. हमें नेबरिंग कंट्रीज़ के अटैक से हमें कौन प्रोटेक्शन देगा. ठीक है, हमारे लिए रोड्स कौन बनवाएगा, हमें सेफ़ ड्रिंकिंग, हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कौन प्रोवाइड करवाएगा, या हमें इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करवाएगा. हम खुद तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते अपने लिए, है ना. तो ये सारी फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करवाता है, गवर्नमेंट. टैक्स फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर needy citizens. Tax money is utilized for relief and rehabilitation in case of natural disasters such as floods, earthquakes, सुनामीज एक्सेट्रा. टैक्स मनी वो सर्विसेज, ठीक है, रोडवेज हुआ, रेलवेज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, डिफेंस हुआ, ये सर्विसेज तो प्रोवाइड करवाने में जाती है. उसके अलावा भी अगर जैसे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनमें भी तो गवर्नमेंट रिलीफ फंड देती है ना. गवर्नमेंट वहाँ पे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स या करोड़ों रुपए की जो हेल्प प्रोवाइड करवाती है. Okay, yes, space, nuclear and missile programs are also funded from the revenue collected as tax. Government provides some services especially for the poor who cannot afford to purchase them from the market. One example is healthcare. Okay, and another, can you give other example? Yes, other example also, healthcare is provided by government, clean drinking water provided by government. Okay, education, free education is provided by government. Okay, so now let's discuss the another topic. Here you can see in this picture that a doctor in a rural health care center giving medicines to patients. Yes, so in government hospitals generally we are provided medicines free of cost. Okay, here you can see one more picture, a woman and her sick child at a government hospital. According to UNICEF, more than 1 million children die every year in India from preventable infections. See, and such type of infections in cities people are generally aware of that, but in rural areas where people are not that much literate, means illiterate people, so they generally ignore all the communicable diseases, and that is why they generally are not aware about all these problems. Okay, now private health services facilities we already have discussed. Here one more picture you can see, a post operative room in leading
प्राइवेट हॉस्पिटल इन दिल्ली। अब दिल्ली में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो बहुत अच्छा रूम होगा ही होगा। ओके, नाउ द अनदर टॉपिक लेट अस डिस्कस हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अब इक्वालिटी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ऑन इक्वालिटी फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, कि हमें इक्वालिटी है कई जगहों पर, हमें मीन्स वी ऑल ह्यूमन आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बट नॉट एवरीवेयर। ओके, जैसे अगर हम वोट डालने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे रिच और पुअर ऑल आर सेम। ओके, दे ऑल हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर गिविंग वोट, फॉर कास्टिंग देयर वोट। ओके, so there they feel equality, there they face equality, but many other cases where they do not face equality. Okay, so health care, अब सेकेंड चैप्टर में जो हेल्थ केयर आया है, क्या वो और इक्वालिटी दोनों आपस में रिलेटेड है? क्या सबको एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सारे सिटीजन्स को? In India, we face a situation where private services are increasing but public services are not. What then available to people are mainly private services. These are concentrated in urban areas. बिल्कुल है, जो अर्बन एरियाज़ में ही सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती जा रही हैं, ठीक है ना, जबकि रूरल एरियाज़ में, गाँवों में, विलेजेस में ये फैसिलिटी उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो रही हैं। ओके, नहीं बढ़ रही हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रादर हाई। ठीक है, प्राइवेट में तो प्राइवेट स्कूल्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पे फीस तो हाई होगी ही होगी। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली। बट प्राइवेट जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता और उसके लिए मनी भी बोरो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि हेल्थ सर्विसेज अवेल करवाने के लिए बैंक से लोन उठा ले। बहुत ही ज़्यादा अगर कोई नीडी है, बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी और उसकी अगर ज़रूरत है और उसमें बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो कोई लोन ले लेता है। अदरवाइज़ जनरली पीपल डू नॉट बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन देयर फैमिलीज़। Some private services encourage incorrect practices to earn more। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो इनकरेक्ट सर्विसेज, इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस भी करते हैं, ठीक है। एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स दोज अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। तो उन समय पे अगर ऑल्टरनेटिव सर्विसेज हैं, उनको यूज़ अवेलेबल भी हैं बट वो यूज़ नहीं की जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू प्रेस्क्राइब सुपरफ्लूअस मेडिसिन्स, इंजेक्शंस और सलाइन व्हेन सिंपल मेडिकेशन में सफिस। जब सिंपल मेडिसिन से काम चल सकता है, फिर भी कुछ जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो हाई डोज प्रेस्क्राइब करते हैं और इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. जो पुअर नहीं है उसके लिए भी मेडिकल एक्सपेंसेस हार्डशिप होते हैं। हर कोई बहुत बड़ा मेडिकल एक्सपेंस वो नहीं कर सकता, है ना, मेडिकल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता, इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकता। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम और देयर पोजेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस। 40% जो पीपल हैं वो कुछ ना कुछ या तो अपना कीमती चीज़ वो सेल करते हैं या वो बोरो मनी वो उनको करनी पड़ती है अपने जो इलनेस, इंजरी या उसके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, ठीक है।
For those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. जो पुअर है उसके लिए तो कोई एक छोटी से छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी उनके लिए टेंशन बन जाती है, क्योंकि उनके पास इतनी मनी नहीं होती है. ओके, what is worse that this situation tends to happen again and again. Those who are poor are in the first place undernourished. ठीक है, पुअर हैं तो सबसे पहले तो उनके पास खाने के लिए ही इतना नहीं है कि वो अपना पेट भर सकें, पेट ठीक से भर सकें, और फिर वो अंडर नरिश्ड हो जाते हैं, पूरा नरिशमेंट नहीं मिल पाता. मीन्स बैलेंस डाइट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अ healthy body. Okay, but poor people often get undernourished. They do not have the full nourishment. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc., and therefore are more likely to fall ill. The expenses of illness make their situation even worse. और फिर जो थोड़ा बहुत भी अगर कोई बीमार हो जाता है, ठीक है, पहले तो उनके पास उतना भरपेट खाने को नहीं होता, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, एडिक्वेट हाउसिंग और क्लीनलीनेस नहीं होती, ठीक है, तो वो ज़्यादा उनकी चांसेस हैं इल होने के, सिक होने के. और फिर अगर इलनेस पे थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस उनको करना होता है तो उससे उनकी सिचुएशन और वर्स हो जाती है. Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manner. आज भी गाँव में women को उतना जल्दी से हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता अगर वो बीमार हो जाती हैं. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. आज भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे अगर मेन को कुछ हो जाता है तो वहाँ पे बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है और उसे बहुत जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है. बट विमेन्स हेल्थ इज़ कंसीडर्ड टू बी लेस इम्पॉर्टेंट. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. और बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो थोड़े बहुत जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो भी प्रॉपरली रन नहीं करते और वहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं हैं. ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? What can be done? There is little doubt that the health situation of most people in our country is not good. It is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. ठीक है, जो गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ा जो उनका रोल है वो पुअर और डिसएडवांटेज जो लोग हैं, ठीक है, मीन्स जिनको कि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं मिलती हैं सोसाइटी में, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, ठीक है, वीकर सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, तो उनको हेल्थ केयर सर्विसेज स्पेशली प्रोवाइड की जानी चाहिए. हाउएवर हेल्थ इज़ एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक अम्यूनिटीज़ एंड social conditions of people as it is on healthcare services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation or of our people, and this can be done. And okay, this can be done. See, Sustainable Development Goal. This goal, state government and our central government, they are having this goal, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है, वेल बीइंग मीन्स ठीक होना, ठीक रहना, ठीक है, उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी फिज़िकल हेल्थ, तो वो उस मीन्स हर एक सिटीज़न की हेल्थ गुड हो. ठीक है, और ये गोल है गवर्नमेंट का. तो एक तो इससे किया जा सकता है. ठीक है, एंड on next page, 2 examples are given, the Kerala experience and Costa Rica. Okay, these 2 examples we will discuss in our next session.
Okay, till then, have a nice day.